السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باسل، جو کہ تحریر ہے ہما وقاص کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 3۔ چولہے کے نیچے آگ پوری آنچ لیے جل رہی تھی اور اوپر رکھی دیگچی میں مسور کی دال اب پھٹکڑیوں کی صورت ابل کر دیگچی کے کناروں تک لگ رہی تھی۔ دوسرے چولہے پر فرائی پین میں گھی کے اندر پیاز جل کر سرخ ہو رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا ڈربہ نما باورچی خانہ تھا جہاں 2 دیواروں میں گھما کر پتھر لگی شیلف بنی ہوئی تھی اور شیلف کے نیچے لکڑی کے ٹوٹے پھوٹے دروازے والے کیبن بنے تھے۔ سنانا دیگچی کے بالکل سامنے کھڑی اس میں چمچہ ہلا رہی تھی اور وہ شیلف سے کمر ٹکائے اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہوں میں، وہی تھا اس دن بارش والا، بہت اداس دکھ رہا تھا بیچارہ، وہ سرگوشی نما آواز میں سنانا کے کان میں پسپسا رہی تھی۔ سنانا نے ماتھے پر تیوری ڈالی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ گھی میں جلتے پیاز والا فرائی پین اٹھایا اور دیگچی میں الٹ دیا تھا۔ ایک دم سے گھی اور دال کے ملاپ کی تیز آواز کا بے ہنگم شور چھوٹے سے باورچی خانے کے باہر تک ابھرا۔ کہیں کوئی نئے تو نہیں آئے بلڈنگ میں ہمارے؟ جوئی نے بھویں اٹکاتے ہوئے تشویش ظاہر کی۔ سنانا دیگچی میں چمچ ہلانے میں مگن تھی اور وہ آنکھوں کو سکوڑے پرسوچ نگاہوں سے برتنوں کے ریک پر جمائے کھڑی تھی۔ پلاسٹک کے گدلے سے رینک میں دھلی چند پلیٹیں اور شیشے کے گلاس بڑے سلیقے سے رکھے تھے۔ یا پھر انو کا دوست ہوگا، اس کو ہی ملنے آیا ہوگا۔ آتا ہماری بلڈنگ میں تو آتا ہی ہوگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ جوئی نے اپنا اگلا اندازہ بتایا اور پرجوش انداز میں سنانا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا ہے؟ کچھ تو بولو نا، میں کب سے تمہیں کچھ بتا رہی ہوں اور تم ہو کہ بس چپ چاپ سے سنے جا رہی ہو۔ جوئی نے اس کی مسلسل خاموشی پر جھنجھلا کر استفسار کیا۔ سنانا نے گہری سانس باہر انڈیلی، چولہے کے نیچے جلتی آنچ کو کم کیا اور اس کی طرف رخ کیا جو پیشانی پر بل ڈالے اسے گھور رہی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ تب سے اس گھر میں مجھے محترمہ نے کہا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اس لڑکے پر اتنی انویسٹیگیشن، اور آج خود جب سے باہر سے آئی ہو بس اسی لڑکے کے بارے میں بتائی جا رہی ہو۔ خیر تو ہے؟ سنانا نے کمر کے گرد باندھا ہوا دوپٹہ کھولتے بھویں اچکا کر تجسس سے پوچھا۔ جوئی نے بھویں اکٹھی کی، اس کی سوچ کی نفی کی جبکہ وہ شیلف پر کچھ دور رکھے ریک میں سے پلیٹ کو اٹھائے دیگچی کی طرف مڑی تھی۔ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہے، ایسا ہی ہے، میں کیوں ذہن پر سوار کر رہی ہوں اس کو؟ جوئی نے اس کی بات پر غور کرتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ سنانا نے لب بھیجے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بھاپ اڑاتی دیگچی میں چمچ ڈالا تھا۔ جوئی نے نچلے لب کو دانتوں میں دبائے ایک دفعہ پھر سے پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ سنانا، کیا ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ وہ کرسچن نہیں ہو سکتا، مسلمان لگتا ہے۔ جوئی کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ سنانا نے بے توجہی سے چمچ میں سالن بھر کر پلیٹ میں انڈیلا اور اس کی طرف رخ موڑا۔ جوئی، جو بھی ہو ہمیں کیا لینا دینا اس سے، چھوڑو اس کو کھوجنا، ذرا یہ چیک کر کے بتاؤ صحیح بنی ہے کہ دال، اماں سے کلاس نہ ہو جائے کہیں۔ سنانا نے پلیٹ اس کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ سنانا صحیح کہہ رہی تھی، وہ کیوں بلا وجہ ایک انجان لڑکے کی شخصیت میں اتنا الجھ رہی تھی۔ سر جھٹک کر پلیٹ پر نظر جما دی اور پلیٹ سنانا کے ہاتھ سے تھام لی۔ ڈورانگ ولاز میں شام اپنی تمام تر رنگینیاں لیے اتری تھی۔ سرخ نارنجی اور پیلی روشنیوں میں نہایا سورج سمندر میں ڈوبتا ہوا دل آویز منظر پیش کر رہا تھا۔ لان میں مدھم سی چلتی ہوا تیراکی کے تالاب میں موجود نیلے پانی میں ارتعاش پیدا کرتے لہریں بنا رہی تھی۔ تالاب سے چند قدم کے فاصلے پر لگے صوفوں پر سفید رنگ کی پوشش پر ہلکے گلابی پھول سبز قالین صورت بچھی گھاس والے لان کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے، اور انہی صوفوں میں سے ایک صوفے پر ڈورانگ پورے وقار کے ساتھ صوفے کے ہتھے پر بازو ٹکائے سفید آدھی آستین کی ٹی شرٹ کے نیچے سیاہ ڈھیلا سا ٹراؤزر تیب تن کیے سامنے بیٹھے ہاروی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ایک طرف رکھے صوفے پر انل لیپ ٹاپ گود میں لیے بیٹھا کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا، اور اسی کے مخالف سمت میں ہاروی ٹانگ پر ٹانگ رکھے براجمان تھا۔ انل سے بہت دیر بحث کے بعد جب اس نے ایڈوانس واپس دے کر فلم سے دستبردار ہونے کا کہا تو ہاروی کو مجبوراً ڈورانگ ولاز آنا پڑا تھا۔ ڈورانگ کا اس فلم سے ایک دفعہ کا انکار مطلب ہمیشہ کا انکار تھا، جو اسی کے نقصان کا باعث بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ہالی ووڈ کے پہلے 5 ابھرتے ستاروں میں سے ایک تھا
जिन्होंने पूरे हॉलीवुड में हलचल मचा रखी थी। तुम्हारे साथ ये मेरी पहली फिल्म है दुरांग, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं था तुम ऐसे सीन बिल्कुल भी नहीं करते। हार्वी ने हार्वी ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला। मिस्टर स्टाइन, वैसे तो मेरे बहुत से किस्से इंडस्ट्री में मशहूर हैं, लेकिन इनमें से स्टीफन की फिल्म का किस्सा आपने नहीं सुन रखा। ये बात मेरे मानने में नहीं आ रही। बिखरे बालों में आस्तगी से हाथ फेरते हुए वसूख से कहा। हार्वी ने एक आईब्रो झुकाया। अंदाज चोरी पकड़े जाने वाला था। दुरांग सही कहता था। उसका स्टीफन की फिल्म वाला किस्सा वाकई बहुत मशहूर हुआ था। वो फिल्म की को स्टार के साथ बोसाजनी का मंजर था, जिस पर दुरान बीच में ही फिल्म छोड़ रहा था, क्योंकि स्टीफन ने मंजर में इसकी अदम दिलचस्पी महसूस करते हुए दुरान से झगड़ा कर लिया था। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने स्टीफन से शर्त लगा रखी थी कि दुरान मेरी फिल्म में ऐसा सीन जरूर करेगा। खफीफ सा कहका लगाया। कंधे धीरे से हिलने लगे थे। आंखें चमक रही थीं, जिनमें बला की जहाना झलक रही थी। एक लम्हे को हावड़ी सटपटा गया। वो कैसे सब जानता था? वो अब सर को झुकाकर बमुश्किल अपनी बेसाख्ता उमड़ आने वाली हंसी को ज़ेरे लब मुस्कुराहट में तब्दील कर रहा था। हार्वी ने लब नीचे इनल की तरफ देखा। वो खुद लैपटॉप पर तवज्जो हटाए अब सामने देख रहा था। जो स्क्रिप्ट तुमने मुझे पढ़ने के लिए भेजा था, इसमें मेरा और कार्ला का कोई ऐसा बढ़ना रोमांवी मंजर नहीं था। डोडान ने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए दो टोक अंदाज में कहा। हार्वी ने एकदम से पहलू बदला। इनल ने कनखियों से बारी बारी दोनों की तरफ देखा और निगाहें फिर से लैपटॉप पर जमा दी थीं। नहीं, ये तो फिल्म डायरेक्टर ने बाद में एडिशन करवाया है। थोड़ा सा मसाला ऐड होना चाहिए ना फिल्म में, आजकल इसकी डिमांड है। हार्वी ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और तायद के लिए पास बैठे इनल की तरफ देखा। इनल ने जवाबी कोई इशारा नहीं दिया था। देता भी क्यों? ये सारे हरबे वो डोडान को कायल करने के लिए, उसे आजमाने के लिए करना चाह रहा था। मुझे डिमांड नहीं देखनी, मयार देखना है। डोडान ने एक आईब्रो चढ़ाए रुके से लहजे में जवाब दिया। वैसे मैंने तो इनल को एक और ऑफर भी दी है। सुबह शायद उसने जिक्र किया हो। हार्वी ने कनखियों से इनल की तरफ सवालिया निगाह डाली। इनल ने आंखें निकालते हुए सर को नपी में जुम्बिश दी। वो इनल से मनाजर की खातिर पैसे बढ़ाने की पेशकश कर चुका था, लेकिन इनल यूसुफ जानता था डोडान फिर भी नहीं मानेगा। इसीलिए उसने हार्वी को उसी वक्त दो टोक लहजे में मना करते कह दिया कि डोडान पैसों में नहीं बिकता। वो सिर्फ अपने फ़न के पैसे लेता है, और उसका फ़न उसकी जानदार अदाकारी और फाइटिंग स्टंट है, जो वो खुद फिल्माता था। डोडान पैसों में नहीं बिकता, मिस्टर स्टाइन सिर्फ अपने फ़न का पैसा वसूल करता है। डोडान ने सिगरेट सुलगाई थी। हार्वी ने चौंक कर हैरत से इनल की तरफ देखा। वो तो समझा था शायद उसने डोडान से ये बात नहीं की होगी, लेकिन मखसूस अंदाज में लाइटर को खोलते और बंद करते वो गहरी निगाहों से हार्वी को देख रहा था। यही कहा होगा इनल ने आपसे? इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ सवाल पूछा। हार्वी ने गहरी सांस ली और पुश सोफे के साथ टिका दी। वो उसकी समझ से बाहर था। आज मानना पड़ेगा, लोग उसको सही बददिमाग कहते हैं। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। इनमें से कोई सीन ऐड नहीं होगा। अब कल सुबह की फ्लाइट है, तुम और कार्ला एक ही फ्लाइट में होगे। हार्वी ने कंधे उचकाए और हथियार डाल दिए थे। डोनान ने सिगरेट वाले हाथ से दाएं अब्रो को अंगूठे से सहलाया और फिर लबनीचे जज्बात में सर हिला दिया था। जैसे ही उसकी आंखों पर से किसी ने खींच कर स्याह पट्टी हटाई, तेज रोशनी के सबब उसने जल्दी से आंखें मीच ली। फिर आहिस्तगी से पलकों को लरजाते हुए आंखों को खोला। एक छोटा सा ऑफिस नुमा कमरा था, जो बेइंतहा बदबूदार था। उसके सामने 3 नफूस खड़े थे। ली ताऊ उसका दोस्त वांग और तीसरा कोई और शख्स था। वो फटी फटी आंखों से सारा मंजर देख रही थी। ली ताऊ से बातें करता और बार बार तीसरे शख्स को शिवन के नाम से पुकार रहा था। वो इस वक्त हल्के गुलाबी रंग के बिना आस्तीन वाली टी शर्ट और तंग जीन्स में मलबूस थी, जो सुबह जबरदस्ती ली ताऊ ने उसे पहनने के लिए कहा था। उसके बाकी सब कपड़े वो अटैची समेत उठाकर फेंक चुका था। उसके चेहरे पर, गर्दन पर अनगिनत नील के निशान, जो पिछले 4 दिन की कहानी चीख चीख कर सुना रहे थे। वो अपनी आबरू बचाने के लिए जी जान लगाए हुए थी। अचानक ली ताऊ आगे बढ़ा और बाजू से खींचकर उसे शिवन के सामने किया। टी शर्ट और जीन्स में मलबूस भी वो खुद को बढ़ना ही महसूस कर रही थी, क्योंकि सामने खड़े शिवन की निगाहें उसके चेहरे से ज़्यादा उसके जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। टी शर्ट गहरे गले वाली थी, जिसे वो अब सिमट कर दोनों हाथों से ऊपर कर रही थी। ली ताओ आखिर आज उसे 5 घंटे के तवील मुसाफिर के बाद शहर ले आया था। इस इमारत में दाखिल होते ही बैरूनी गेट पर उसकी आंखों पर स्याह पट्टी बांध दी गई थी।
जो अब इस ऑफिस नुमा कमरे में आकर खोली गई थी। शिवन अब लब्बों पर खबासत से उंगली फेरते हुए उसके इर्द गिर्द घूमकर उसे जांच रहा था। उसकी निगाहों में मौजूद हैवानियत उसको अंदर से लर्जा रही थी। अचानक शिवन ने उसके बार बार गले के दुरुस्त करते हाथों को पकड़कर पास पड़ी टेबल के साथ पीछे के रुख कमर पर बांध दिया था। वो इस अमल पर लड़खड़ा गई थी। शिवन अब फिर उसको बगौर देख रहा था, फिर रुका और लीताओ की तरफ हैरत से देखा। तुम्हें ये उस काम के लिए बेकार क्यों लगती है? अच्छी खासी तो है। हैरत और खबासत से भवें उचकाए सवाल किया। लीताओ ने हकीर निगाह उस पर डाली जो पटी पटी आंखों से कान खड़े किए उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, पर वो इतनी तेजी से चीनी जुबान बोल रहे थे कि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। फकत एक खौफ था जो रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे गर्दिश कर रहा था। तुम्हें इसमें क्या खास नजर आया? तुम बस इसे एजाब बेवनकारी वाले डिपार्टमेंट में डालो और मुझे मेरा मुआवजा दो। लीताओ ने भरपूर बेजारियत जाहिर की। वो उसके बार बार भागने और जिस्म फरोशी पर आमादा ना होने से तंग आ चुका था और अब उसे सिर्फ पैसों के से गर्ज थी। शिवन अब उसकी शर्ट को उंगली से घुमाते हुए उसे करीब कर रहा था और शिवन की इस हरकत पर वो फंसे हुए पंछी की तरह फड़फड़ाने लगी थी। लीताओ ने एक झटके से शिवन को गर्दन से पकड़कर पीछे किया। ऐसे नहीं, अगर इसके लिए चाहिए तो पहले पैसे दो मुझे। मुझे मेरा माल चाहिए, लीताओ ने तनकर कहा। वो खबासत से बुलंदो बांग कहका लगाता पीछे हुआ, चंद कदम आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर इशारा किया। अगले ही लम्हे एक और भिटकार ज़दा चेहरे वाला नफ्स ऑफिस में दाखिल हुआ था। पैसे दो इनको, फारिग करो और मार्क को भेजो मेरे पास। शिवन ने जेब में हाथ डाला और एक चाबी कमरे में आने वाले नफ्स की तरफ फेंकते हुए हुक्म सादिर किया। चाबी थामने के बाद इस आदमी ने आंख से ही ली ताओ और वांग को अपने साथ आने का इशारा किया। ली ताओ बिना उसकी तरफ एक निगाह भी डाले बाहर जा चुका था। अब कमरे में शिवन पूरी तरह एक्सरे मशीन बना उसे जांच रहा था। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे पाकिस्तान जाना है, अपने घर। अचानक वो भागती उसके पैरों में घुटनों के बल बैठ गई थी। जितनी टूटी फूटी चीनी जुबान उसे आती थी वो सामने आजमा रही थी, लेकिन शिवन तो वक्का फिरौन बिना कह के लगा रहा था, यूं जैसे वो उसके गिड़गिड़ाने और रोने से लुत्फानंदोज हो रहा हो। उसी लम्हे दरवाज़ा खोलकर एक बड़े डेल डोल का आदमी दाखिल हुआ। वो कोई स्याह फाम था और अब तक के तमाम नफूस में हैबतनाक। वो जो परसों 50 लड़कियां अलग की थीं, उनमें इनमें डाल दो इसको। शिवन ने बेरहमी से अपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए सामने खड़े स्याह फाम को हुक्म सादिर किया। हुक्म मिलते ही स्याह फाम आगे बढ़ा और झुककर उसे बालों से दबोचा। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि ऊपर को खींचे बालों के साथ आंखें भी ऊपर को चढ़ गई थीं। तकलीफ से मुतवातिर चीखें मारती वो खड़ी हुई थी। उस शख्स ने पहले उसकी आंखों के गिर्द स्याह पट्टी बांधी और फिर एक झटके से उसे अपने कंधे पर डाला। टांगों पर उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो हिल भी नहीं सकती थी। आंखों पर स्याह पट्टी बंधे होने की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस चलता हुआ महसूस हो रहा था, फिर सीढ़ियां उतरता हुआ और फिर एक जगह वो रुक गया था। हर गुजरता लम्हा उसकी जिंदगी को अंधेरों में धकेल रहा था। सब कुछ एक भयानक ख्वाब जैसा लग रहा था। स्याह फरारी नम रवि से चारकोल में लिपटी शिफाफ सड़क पर चल रही थी। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठा इनल अपने साथ बैठे दुरान को काफी देर से जांच रहा था। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो लोग रात को 8 बजे शूटिंग से पहले मामूल की शॉपिंग के लिए घर से निकले थे। कल सुबह चाइना के लिए फ्लाइट थी, इसीलिए ज़रूरी साजो सामान आज ही खरीदना था। दुरान मुतवज्जी कैफियत में गैर मरई नुक्ते पर निगाहें मरकूज किए था। वैसे तो उसे तवील वक्त खामोश रहने की आदत थी, लेकिन इनल से कभी कभार उसकी ये आदत बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी और अब भी दुरान को देखकर उसका कुछ ऐसा ही हाल था। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? पूरी तरह उसकी तरफ रुख मोड़े सवाल किया। दुरान ने चेहरा मोड़ा और गहरी निगाहों से नल की तरफ देखा। वह हनूस गहरी सोच के बायस पेशानी पर इकट्ठी होकर उसकी शक्ल बनाए हुए थी। तुम्हें हार्वी अजीब नहीं लगता? इनल की बात का जवाब देने के बजाय उससे सवाल पूछा गया। ये उसकी आदत थी, सवाल पर जवाब के बजाय सवाल करना और दूसरे इंसान को खुद से जवाब तलाश करने पर मजबूर करना। लेकिन इस वक्त किया गया सवाल अजीब था कि उसको हार्वी क्यों अजीब लगा, हालांकि आज तक सबको वो अजीब ही लगता था। हालांकि आज तक सबको वही अजीब लगता था। मतलब? इनल ने कंधे उचकाए। मतलब मुझे कुछ अजीब लगता है।
पुरतजस्सुस लहजा। इनल ने नासमझी से निगाहों में समोए उसे देखा। सेम गाड़ी को सुर्ख बत्ती जलने के बाद सिग्नल पर रोक चुका था। हार्वी के पास कितनी सुपरहिट फिल्में हैं, फिर भी इसी अंदाज में हैरान बैठे इनल से सवाल किया। इनल ने भवें उठाई और लबों को गुलाई रुख घुमाते हुए चंद सेकंड सोचा, फिर नाकाम होकर उसकी तरफ देखा। अब वो हार्वी की सुपरहिट फिल्मों की गिनती तो हरगिज नहीं करना चाहता था। सब सुपरहिट हैं और ये वाली भी सुपरहिट ही जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे थे? मुतवाज़िन लहजा में जवाब देकर तशवीश जाहिर की। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी कुछ गड़बड़ है। उसके पास इतनी दौलत की रेल पेल, सिर्फ चंद सुपर हिट फिल्में देकर वो कैसे बहुत सारी प्रोडक्शंस कंपनी को पीछे छोड़े हुए है। दुर्रान ने थोड़ी सहलाई और आंखों को सिकुड़ा। इनल ने गहरी सांस ली। अच्छा, तो वो तब से इन सोचों में मगन था। सिग्नल खुल चुका था, गाड़ी फिर से चलने लगी। दुर्रान, तुम हमेशा से आगे की सोच क्यों रखते हो? मेरी तो समझ से बहुत बालातर है ये बात। उसकी दौलत से हमें क्या लेना देना? इनल ने उसकी बात पर हैरत जाहिर की। सही, चलो तुम कहते हो तो छोड़ दिया। जबरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर लाया। ऐसी मुस्कुराहट जो मुस्कुराहट खुद ब खुद चेहरे पर आती है, वो तो शायद कभी उसके चेहरे पर आई ही नहीं थी। लेकिन इस दुनिया में मुस्कुराहट नामी चीज़ अक्सर जगहों पर इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसीलिए उसने एक झूठी मुस्कुराहट लबों पर सजाना सीख लिया था, जिसे बवक्ते ज़रूरत वो इस्तेमाल करता था। इस मुस्कुराहट का साथ उसकी आंखें कभी नहीं देती थीं। मोबाइल की बजती रिंगटोन पर इनल ने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ रुख दिया। रीना कॉल कर रही है बार बार। तुम चेंजिंग रूम में थे तब भी कॉल आई थी। इनल ने मोबाइल पर ही निगाहें झुकाए साथ बैठे दुरान को बताया। तुम बार बार काटते रहो, सपाट लहजे में तुर्की बतुर्की जवाब दिया। इट्स नॉट फेयर दुरान, शी लव्स यू। इनल ने मसनूई आंखें निकाली थी। रीना बेवरली हिल्स में एक मशहूर दौलतमंद बिजनेसमैन की बेटी थी और दुरांग पर बुरी तरह फिदा थी। कोई भी शोबिज़ तकरीब हो या कुछ भी हो, वो हर जगह मौजूद रहती थी। उसके असर रसूख इतने थे कि वो दुरान के पेशावर फ़ोन नंबर तक रसाई हासिल कर चुकी थी और अब आए दिन कॉल्स करती रहती थी। अगर इस तरह के लव का ख्याल रखने बैठ गया तो बस फिर क्या मैं, मुतवाज़िन लहजे में जवाब दिया और उचक कर सीधा हुआ। निगाहें सड़क के दाएं तरफ मौजूद मोंगलिया बेकरी पर जम गई थी। ये बेवरली हिल्स की मशहूर बेकरी थी जो अपने टेस्ट की वजह से मशहूर थी। बेकरी के पास रोको, दुरान ने लबों पर उंगली रखते हुए ड्राइवर को हुक्म सादिर किया था। ड्राइवर हुक्म से पहले ही गाड़ी को एक तरफ पार लगा चुका था, क्योंकि वो जानता था इस सड़क से दुरान कभी रुके बिना नहीं गुजरता था। बेकरी के शीशे की बनी सामने की दीवार के पार अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था और आज भी वो सफ़ेद बेकरी कैप सर पर टिकाए सफ़ेद नैपकिन बांधे काउंटर के पीछे खड़ी दिलकशी से मुस्कुरा रही थी। काउंटर के सामने खड़ा खरीदार उसे महवे गुफ्तगू था। आज फिर? उफ, डरान प्लीज़, रात को फ्लाइट है हमारी और बहुत ही तैयारी बाकी है, आज नहीं। इनल ने झुंझलाकर हाथ हवा में उठाए, उसे इस किस्म की इल्तिजा की थी। लहजा निहायत बेजारियत लिए हुए था। दुरान उसकी बात अनसुनी करता सिगरेट सुलगा चुका था। गाड़ी का शीशा आहिस्तगी से नीचे जा रहा था और दुरान की निगाहें बेकरी के शीशे के पार उस लड़की पर जम गई थीं। इनल ने अपने हवा में उठते हाथ बेबसी से नीचे गोद में रखे। तुम्हें बात करनी चाहिए उससे। दुरान के करीब होकर सरगोशी नुमा मशवरा दिया। क्या बात करूं? लबों में सिगरेट दबाए कहा और लाइटर को जलाकर सिगरेट के पास किया, जबकि आंखें वहीं टिकी थीं। तुम जानते हो क्या बात? इनल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभी वक्त नहीं, वो गाड़ी के पुट्टे सर टिकाए पुरसकून लहजे में कह रहा था। आंखों की पुतलियों में अब लड़की का अक्स बन रहा था, जिनमें वो हंस रही थी। इनल ने गहरी सांस बाहर उंडेली। चंद सेकंड यूं ही खामोशी निकल गई थी। इनल आगे हुआ, कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली और फिर दुरान की तरफ देखा, जो गाड़ी की खुली खिड़की पर बाजू टिकाए सिगरेट के कश लगा रहा था। मिस्टर मलिक, अब चलें, आज इतना बहुत है, इसको देखना। इनल ने सीट की पुट से सर टिकाए आंखें मूंदे सवाल किया था। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वैसे ही सिगरेट के कश लगाता हुआ शीशे के पार उस लड़की पर निगाहें जमाए हुए था। इनल ने जब्त से लब नीचे आंखें खोली और पूरी तरह उसकी तरफ घूम गया था। दुरान, मेरी जगह तुम्हारा पिए कोई और होता तो यकीन करो तुम्हें छोड़कर जा चुका होता। मेरे भाई? इनल ने सर को दाएं बाएं घुमाते हुए थके लहजे में तंज के तीर चलाए। क्यों?
मासूमियत से बिना मासूम मासूमियत से बिना उसकी तरफ देखे सवाल किया। वाह, ये मासूमियत! मैं पीए हूँ, लेकिन कुछ भी तुम्हें वक्त पर नहीं करवा पाता। इनल ने दांत पीसते हुए अपनी बेबसी की हद बताई। सैम, ड्राइव प्लीज। और इस रास्ते से आने से गुरेज किया कर भाई। इनल ने आगे होते हुए ड्राइवर को मुफीद मशवरा दिया। सैम, वेट। डुरान ने रोब से हुक्म दिया। इनल ने घूर कर देखा। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में जिद से देख रहे थे। सैम, नो, प्लीज जल्दी चलो। इनल ने दांत पीसते हुए सैम को भिड़ से मुखालिफ किया था। दोनों के दरमियान अक्सर दोस्ताना नोकझोंक होती रहती थी और सैम दोनों में ही पिस जाता। और अब भी वो दोनों की कशमकश में बैठा था कि किसकी बात माने और किसकी नहीं। इस वक्त बहुत तैयारी पड़ी और वो इसमें सबसे ज़्यादा अहम है। चलो सैम, तुम फौरन दुरांग चलो। इनल अब सख्त पेशावराना लहजा अपनाए हुए था। देख लूंगा तुम्हें भी सैम, चलो। दुरान ने मसनूई गुस्से में कहा। हाँ, देखते रहना, साथ हूं ना तुम्हारे हमेशा। इनल ने आंख को दबाए शरारत से कहा। गाड़ी फिर से सड़क पर उसी रफ्तार से दौड़ने लगी थी और इनल अब सड़क को तासुब से हिलाते हुए हंस रहा था। जोई आस्तगी से फ्लैट का दरवाज़ा लगाकर पलटी और फ्लोर के जीने फैलाते हुए नीचे उतरी थी। स्याह जोड़े में मलबूस वो सुर्ख दुपट्टे को कंधों पर टिकाए इजलत में जीने उतर रही थी। अम्मा सो रही थी और अब्बा के आने में अभी वक्त था। इसी बात से फ़ायदा उठाते वो उसी इमारत के दूसरे फ्लोर पर मौजूद अपनी दोस्त हिना के घर जा रही थी। वो हिना के घर जाने का बताकर बाहर निकली थी। हिना भी मजहबी एतबार से ईसाई थी और बचपन से उसकी हमजमात थी। एक इमारत की रिहायशी होने और एक ही जमात में होने के बायस दोनों में गहरी दोस्ती थी। अब वो तीसरे फ्लोर के जीने उतर रही थी जब अचानक निगाह सामने पड़ी और ना चाहते हुए भी कदम थम गए थे। आंखों का मजीद हुजूम बढ़ाए बगौर सामने देखा। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही दाएं तरफ वो इन्हों के फ्लैट के आगे खड़ा था। स्याह टी शर्ट, नीली पुरानी जीन्स की जेबों में हाथ डाले मुस्तरिब सी कैफियत में बार बार जेब से हाथ निकालकर फ्लैट की घंटी बजा रहा था। वो कैसे उसे भूल सकती थी? उस दिन मैदान वाले वाक़ये के बाद आज उसे 2 हफ्ते बाद देखा था और एक सेकंड के 12वें हिस्से में उसका ज़हन उसकी शनाख्त कर चुका था। वो यूं ही साकिन खड़ी उसे देख रही थी जब अचानक ज़हन में ख्याल आया, अन्नो का छोटा भाई जो इसका हम जमात था और कल उसी ने जिक्र किया था कि वो लोग कहीं गए हुए हैं। इसी ख्याल के ज़ेर असर वो बेसाख्ता चंद कदम आगे बढ़ी और उसके बराबर में जाकर बोलने के लिए लब खोले। उसी लम्हे लड़के ने सरासमगी से रुख मुड़ा। वो अन्नो शायद यहाँ नहीं है, कहीं गए हुए हैं वो लोग। जोई ने हिचकिचाते हुए कहा। लड़के के देखने का अंदाज अजीब था। वो अपना एतमाद खो रही थी। लड़का चंद सेकंड खामोश खड़ा उसे देखता रहा और फिर यूं ही सपाट चेहरे के साथ रुख मोड़े दरवाजे पर दस्तक देने लगा। हैं, इसे सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने बताया तो है कि वो लोग घर पर नहीं। जोई को हैरत का शदीद झटका लगा। अन्नो के दोस्त हैं ना आप? उसने उसके कोई जवाब ना देने और बेजारी से देखने पर जोई ने फिर से सवाल किया। अब की बार जवाब देना तो दूर की बात, उसने रुख मोड़कर देखना भी मुनासिब नहीं समझा। जोई को उसकी ये बेनियाजी अजीब तरह खली थी। क्या इसे सुनाई नहीं देता? ओह जीजस! हैरत से आंखें खुल गईं। दिमाग ने तो 180 की रफ्तार फिर से घुमाकर नतीजा अखज़ कर लिया था, लेकिन दिल को यकीन ना आया। वो फिर से उससे मुखातिब हुई। देखें, वो लोग यहाँ नहीं हैं, शायद अर्जेंट कहीं जाना पड़ गया उनको। पता नहीं क्यों पर हमदर्दी जाग रही थी, इसीलिए वो उसे पूरी तफसील दे रही थी। लेकिन लड़के ने अब की बार भी देखना गवारा नहीं किया। उसे उसके चेहरे के तासुरात सपाट थे कि वो ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि उसे वाकई में सुनाई नहीं दे रहा। लड़का अब उस पर से बेनियाजी बरतता फिर से फ्लैट की घंटी बजा रहा था। वो इतनी तजब्जुब का शिकार हुई कि हिना के घर जाने के बजाय फिर से वापस ऊपर चढ़ने लगी। फ्लैट का दरवाज़ा बंद करते ही निगाह सामने सनाना पर पड़ी, जो लाउंज में बैठी खराब और खस्ता रेडियो के एंटीना से जोर आजमाई में मसरूफ़ थी और एंटीना था कि सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अब रेडियो के ऊपर धार धार थप्पड़ रसीद कर रही थी। इसी तशद्दुद के दौरान अचानक सामने निगाह जोई पर पड़ी तो हैरानगी से भवें उचकाए सवाल किया। क्या हुआ? तुम तो हिना की तरफ जाने के लिए निकली थी, क्या गई नहीं? पर वहां तो वर्ता हैरत में मुब्तला आंखें बिना झपके खड़ी थी। सनाना, वो सुन नहीं सकता, मुतहयर से लहजे में कहते हुए आगे बढ़ी। कौन कौन सुन नहीं सकता?
सनाना के अंदाज में हैरत से ज़्यादा तजस्सुस था। वही अनो का दोस्त बैरा है बेचारा। चेहरे पर अनगिनत परेशानी से जाती वजाहत दी थी। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा ये सब? सनाना ने रेडियो एक तरफ रखा और मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मैं अभी हिना के घर जाने के लिए नीचे उतरी तो अनो लोगों के फ्लैट की घंटी बजा रहा था। जोई ने अलफ से लेकर ये तक सारी बात सनाना के गोश गुजार कर दी थी और उसकी आंखें भी हैरत से फैल गईं। अफसोस हुआ बहुत, बेचारा। सनाना ने गहरी सांस खारिज किए तासुब भरे लहजे में अफसोस का इजहार किया। हाँ, मुझे भी, कोई से लहजे में तायीद की। सनाना अब फिर से रेडियो उठा चुकी थी। इसके लिए ये बात मामूली थी शायद, लेकिन जोई के लिए नहीं। उस लड़के से उसे अजीब तरह से हमदर्दी महसूस होने लगी। हिना के घर जाने का इरादा मुकम्मल तौर पर तर्क करते वो मरियल कदम उठाती बालकोनी पर आ लगी। रीलिंग पर कोहनियाँ टिकाई और चेहरे को उदासी से हाथों पर टिका दिया था। उस दिन इस लड़के को देखकर वो उसके मुफलिस होने पर उदास हो रही थी और आज उसकी कुव्वत समात ना होने पर दिल मजीद उदासी से भर गया था। अचानक निगाह फिर से सामने मैदान में उसी बेंच पर पड़ी। वो वहीं बैठा था। कितनी ही देर वो बेसबब उसे वहीं खड़ी तकती रही और फिर शाम के गहरे साए फैलते ही कदम कमरे की जाने बढ़ा दिए थे। दुरांग विलास के ड्यूरी में अंदर लाउंज की राहदारी में दाखिल होते ही दुरान और इनल के कदम एक साथ थमे थे। वो रात के 10 बजे दुरांग विलास पहुंचे और अभी अंदर दाखिल ही हुए थे कि राहदारी में असवद मलिक की आवाज़ की बाज़गश सुनाई दी। मिस्टर एल्बर्ट, दुरांग अभी घर नहीं, कब आएगा कुछ नहीं पता। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। आप प्लीज़ अभी चले जाएं यहाँ से। मुझे दुरांग में कोई तमाशा नहीं चाहिए। असफद मलिक करख लहजे में किसी पर बोल रहे थे। दुरांग ने तेज़ी से कदम आगे बढ़ाए, साथ ही नल ने भी तजस्सुस में कदम मजीद तेज़ किए। जैसे ही राहदारी से आगे वो दोनों हाल नुमा इस बड़े से लाउंज में दाखिल हुए, सामने ही विलियम एल्बर्ट अपने 5-6 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ गुस्से और रोब में भरा खड़ा था। उसके बिल्कुल सामने मलिक असफन और रूबी मुस्तरिब खड़े थे। नहीं, मैं यहाँ से बात किए बिना तो नहीं जाऊँगा। बुलाओ उसको। विलियम एल्बर्ट ने 2 टोक लहजे में ऊंची आवाज़ में अपना फैसला सुनाया। उसी दौरान हाल में मौजूद तमाम नफूस की निगाह एक साथ ही दुरान और इनल पर पड़ी। असफन मलिक तेजी से दुरान की तरफ बढ़े। शुक्र है दुरान, तुम आ गए। देखो ये क्या मामला है, मेरी तो समझ से। असफन मलिक परेशानी और बेजारी से वजाहत देते आगे बढ़ गए थे जब विलियम की काटदार आवाज़ हॉल में गूंजी। दुरान, मेरी बेटी कहाँ है? विलियम की आवाज़ में गरज और गुस्सा शामिल था। विलियम एल्बर्ट लॉस एंजल्स का एक मालदार बिजनेसमैन और रीना विलियम का बाप था। दुरान और इनल की आंखें एक साथ हैरत से फैलीं, जबकि विलियम गुस्से में बेपरता दुरान की तरफ बढ़ा। मेरी बेटी रीना, इसका पूछा हूँ तुमसे, कहाँ है वो? तुम्हें मालूम भी है उसने क्या किया? विलियम ने आंखें निकालते हुए चबा चबा कर सवाल किया। दुरान ने जवाब तलब करने के लिए बोलने के बजाय एक एब्रो उचकाए। रीना ने तुम्हारे लिए इस्लाम कबूल कर लिया है और कल से वो घर से गायब है। कहाँ है मेरी बेटी? विलियम अब आपे से बाहर हो चुका था। वो ये अनोखा इंकशाफ करने के बाद गुस्से से आगे बढ़ा। इससे पहले कि वो दुरान के गिरेबान तक पहुंचता, इनल ने फौरन उसके और दुरान के बीच हायल होकर उसके सीने पर हाथ धरा था। आराम से मिस्टर विलियम। दुरान कैसे जान सकता है आपकी बेटी कहाँ है? हम अभी बाहर से आ रहे हैं और सुबह फिल्म की शूटिंग के लिए निकलना है हमें। दुरान के बजाय इनल ने नाक पीटे सख्त अल्फाज में जवाब दिया था। एक सेकंड के तौक़ुफ़ से पहले कि विलियम मजीद कुछ बोलता, इनल ने कुछ याद आ जाने जैसे अंदाज में हाथ पेशानी पर रखा। 1 मिनट। इनल ने तेज़ी से मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चलाईं। रीना के बार बार फ़ोन करने का मकसद अब समझ आ रहा था। विलियम अब भी दुरान की तरफ खूनख्वार निगाहों से घूर रहा था और उसकी पेशानी पर जहाँ बल मजीद गहरे हो रहे थे, वहाँ कनपट्टी की रगें भी उभरने लगी थीं। जहन में विलियम की बात हथौड़े की तरह लगी थी। रीना ने तुम्हारे लिए इस्लाम कबूल कर लिया है? इनल लब भींचे फ़ोन कान से लगाए खड़ा था और दूसरी तरफ रीना ने बहुत जल्द फ़ोन उठा लिया था। हेलो। इनल ने रस्म हेलो कहते ही मोबाइल का स्पीकर ऑन किया और फ़ोन को हाथ में सीधा पकड़ लिया। मुझे दुरान से बात करनी है। रीना की आवाज़ फ़ोन से उभरी। वो आजरदा लहजे में दुरान से बात करने की ख्वाहिश जाहिर कर रही थी। विलियम की पेशानी पर उभरे शिकन और रोब फक से उड़ा। दुरान ने लब नीचे एक निगाह विलियम पर डाली और जेब से हाथ निकालता बड़े वक़ार से इनल के हाथ में पकड़े फ़ोन के करीब हुआ। हेलो। भारी खुरदरा बेजार लहजा।
دوسری طرف تو جیسے اس کی آواز نے رینا کو پرجوش کر دیا۔ دوران پلیز مجھ سے بات کرو، میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ دیکھو میں نے کیا کیا، آج تمہارے پیار میں اسلام قبول کر لیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی ساری بےتابیاں اور قربانیاں بیان کر گئی تھی۔ ولیم کا چہرہ ندامت اور غصے سے سرخ ہوا اور وہ بمشکل خود کو ضبط کرنے سے مجبور کیے ہوئے تھا، مگر جس کے لیے رینا نے اپنا مذہب تک تغیر کر دیا تھا وہ تو خون آشام نگاہوں سے فون کو کچھ یوں گھور رہا تھا جیسے بس چلے تو یہیں سے گردن دبوچ کر رینا کو باہر نکال لے۔ لیکن میں نہیں چاہتا، ضبط کے آخری دہانے پر کھڑے ہو کر مختصر روکھا سا جواب دیا۔ دوران میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے تمہارے لیے اپنا مذہب، وہ چیخ اٹھی تھی مگر بات دوران کی غراہٹ میں دب کر رہ گئی تھی۔ سو واٹ، میں مسلم تو کیا کسی بھی مذہب کے پیروکار سے شادی نہیں کروں گا، اور میری بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد تمہارا باپ میرے گھر اور گریبان تک پہنچا تو نتیجے کے ذمہ دار تم ہوگی۔ کاٹ دار لہجہ تھا جس میں کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ دوسری طرف تو جیسے سکتے جیسی خاموشی طاری ہوئی۔ دوران نے کٹیلی نگاہ ولیم کے ہوائیاں اڑتے چہرے پر ڈالی اور قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ انل بھی غصے میں فون ہاتھ میں تھامے ولیم کے قریب ہوا۔ رینا گھر واپس آؤ، ولیم نے آنکھیں چراتے ہوئے غصے میں فون کے قریب ہو کر کہا۔ ڈیڈ، پھیکے سے لہجے میں دوسری طرف سے رینا کی درد سے آتی آواز آئی تھی۔ ہاں گھر واپس آؤ فوراً، ولیم نے دانت پیستے ہوئے حکم دیا۔ اپنے سیکیورٹی گارڈز کی طرف دیکھا اور قدم تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ انل نے فون بند کیا اور دوران کے کمرے کی طرف چل دیا۔ روبی گردن کو خم دے کر اسپن کے قریب ہوئی۔ جب بھی نکالے گا کفر کے کلمات ہی نکالے گا، جاہل کہیں کا۔ میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلم لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اتنے امیر باپ کی بیٹی ٹھکرا دی، ولیم ایلبرٹ کی اکلوتی بیٹی ٹھکرا دی۔ روبی کے لہجے میں دوران کے لیے بلا کا تعصب اور غصہ تھا۔ اچھا مت زیادہ سوچو، یہ مت بھولو کہ تم اسی کفر کے کلمات کہنے والے کی کمائی کھاتی ہو، اور تم سے بہتر کون جانتا ہے کہ وہ اسلام سے متنفر کیوں ہے۔ اپنے بیٹے کی فکر کرو، آج کل رات بھر باہر رہنے لگا ہے۔ عصمت ملک نے ٹھہرے ہوئے گارڈ دار لہجے میں طنز کے تیر برسائے تھے۔ روبی نے تنک کر عصمت کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف بنا دیکھے قدم اوپری زینے کی طرف بڑھا چکے تھے جو لاؤنج کے وسط اوپری منزل کو چڑھتے تھے۔ روبی کے چہرے پر ماضی کے سائے لہرا گئے تھے۔ ملک ہاؤس کے بالکل اوپر سورج پوری تمازت سے چمک رہا تھا۔ چھوٹے سے لان میں لگے ایک عدد درخت کی شاخوں پر چڑیاں دبک کر بیٹھی آنکھیں مودے دھیرے دھیرے سانس لے رہی تھی۔ سیاہ سیمنٹ سے بنے فرش والی ڈیوری میں پرانی سی کار کھڑی تھی جسے وہ رگڑ رگڑ کر دھونے میں مصروف تھا۔ بنیان کے نیچے سفید شلوار پہنے، ہاتھ میں پانی گراتا پائپ پکڑے، وہ کار کو دل و جان سے دھو رہا تھا۔ 22 سالہ یاور ملک کو اپنے باپ کی اس آخری نشانی سے بے حد لگاؤ تھا۔ یہی وجہ تھی ہر چھٹی کے دن وہ ناشتے کے فوراً بعد پوری لگن سے پہلا کام یہی کرتا تھا۔ اسے بی اے کرنے کے فوراً بعد ہی ایک نجی پیسٹی سائڈ کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی۔ بڑے بھائی نے بڑا جگرا کیے اس کے حوالے کار کر دی تھی، بس تب سے یہ کار اس کی کل کائنات تھی۔ وہ یوں ہی گنگناتے ہوئے کار دھو رہا تھا جب گھر کے لاؤنج میں ابھرتی آوازوں پر کان کڑے ہوئے۔ ڈیوڈی سے ایک زینہ چڑھ کر کھلتا لکڑی کا دروازہ سیدھا ملک ہاؤس کے لاؤنج میں جاتا تھا جہاں کا منظر ہولناک تھا۔ عمر رسیدہ دستگیر بیگم بڑی شان سے پلنگ پر براجمان جری زدہ ہاتھوں میں مکڑی تسبیح کے دانے گھما رہی تھی۔ اسی پلنگ کے ایک طرف بیٹھی روبی ملک 3 سالہ دوران کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے دبوچے بیٹھی تھی۔ دوران کے تن پر ایک عدد نکر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے جسم پر اور چہرے پر جگہ جگہ چاول چپکے ہوئے تھے۔ پلنگ سے کوئی دور فرش پر چاول بکھرے ہوئے تھے اور عصمت وہیں غصے میں کھڑی فرش کو گھور رہی تھی۔ عصمت سے کچھ دوری پر لکڑی کی کرسیوں پر 2 سالہ بڑھان اور 3 سالہ پائکا منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ آنکھیں نیچی کر، روبی نے چیخ کر کہا اور ساتھ ہی پوری قوت سے کھینچ کر تھپڑ دوران کے گال پر رسید کیا۔ 3 سالہ دوران کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے وہ اسے غصے سے گھور رہی تھیں جبکہ وہ نڈر انداز میں پوری آنکھیں کھولے روبی کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ سنا نہیں، آنکھیں نیچی کر، روبی نے تلملا کر ایک اور تھپڑ اس کے پھولے ہوئے سفید گال پر رسید کیا۔ اس کے دونوں گال سرخ ہو چکے تھے مگر آنکھ میں ایک آنسو تک نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے، وہ کون سا یہ مار پہلی دفعہ کھا رہا تھا۔ ہر روز صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو
आंख बंद होने तक ऐसे कई चमाट वक्फे वक्फे से उसके गाल पर रसीद होते रहते थे, बस हाथ बदलते रहते। उफ खुदाया, माँ जी देखे तो कैसा ढीठ है, सांप की तरह आंखें निकाले खड़ा है, मजाल है जो झपक भी दे। रूबी ने नाक फुलाकर दस्तगीर बेगम की तरफ देखा। वो तस्बीह के दाने गिराते हुए अब हकारत से दुरान की तरफ देख रही थी। रूबी ने नन्हे से घुटने को कंधों से पकड़कर झंझोड़ा और वो पूरा हिल गया था, फिर पलक ना झपकी। उफ, आफत का परकाला कहीं का। कितनी दफा रोका है फायका और बुरहान की प्लेट में से ना खाया कर, पर नहीं, फिर वही काम। तुझे जब अलग डाल कर देते हैं तो क्या तकलीफ होती है जो उनकी प्लेट में भी हाथ डालता है। रूबी गुस्से में उसे झंझोड़ते उस पर चीख रही थी। गंदा खून ना हो तो। एक और जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। यावर जैसे ही लाउंज के दरवाजे पर पहुंचा, सामने का मंजर देखकर तड़प गया। भाभी, ऊंची आवाज में पुकारा। तेजी से लंबे लंबे डग भरता आगे बढ़ा और झपटकर दुरान को रूबी से छीन लिया। छोड़े इसे, 3 साल का बच्चा है वो, अगर बच्चों के साथ मिलकर खा ही लिया तो आप क्यों पीट रही हैं इसे? यावर गुस्से से चीखा। 3 साल का, नाक में दम कर रखा है इसने। रूबी ने उसी के अंदाज में चीख कर जवाब दिया था। पास खड़ी उस्मत तनक कर आगे हुई। और तुम जो इसके हिमायती बनकर कूद पड़े हो, घर का काम तो तुमने करना होता है या हमने? भाभी ठीक ही तो कह रही हैं, हाल देखो क्या कर लिया है इसने, सारे फर्श पर चावल ही चावल। उस्मत ने भी रूबी का भरपूर साथ दिया। देती क्यों ना, तलाक याफ्ता एक बच्ची के साथ मैके में रहना हो तो रूबी जैसी भाभी का साथ देना ही पड़ता है। 1000 दफा इसे समझाया है, तुम सिर्फ अपनी प्लेट में खाया करो, पर नहीं, जीत है पूरा, पलीत ना हो तो। उस्मत ने दांत पीसते कहा और आगे बढ़कर एक थप्पड़ दुरान के पुष्प पर जड़ दिया, जो यावर की टांगों से चिमटा खड़ा था। यावर ने तड़प कर उसे गोद में उठाया और गले से लगा लिया। बाजी, खुदा का खौफ करें कुछ। नवीन भाई का खून है, पलीत कैसे हुआ? मुसलमान है दुरान, यावर ने हैरत और गुस्से के मिले जुले लहजे में कहा। नवीन का है, तुम्हें कैसे पता? ये पता नहीं, मुआ उस अंग्रेज बुड्ढी के किस मियाँ से होगा, कोई एक होगा क्या, इसका नाम रख लेने से मुसलमान हो गया क्या? पलीत है ये। अभी 1 साल से डॉक्टर के पास थे तो लेकर ना जा सके, आया बड़ा हिमायती। दस्तगीर बेगम ने हकारत से कहते हुए नफरत में अपना हिस्सा डाला था। बस करें, आप लोगों से बहस करना फजूल है। डॉक्टर के पास ले जाऊं, इसकी देखभाल की उम्मीद आप जैसों से करूं। और उस्मत बाजी, रूबी भाभी, आज के बाद दुरान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। यावर ने नाक फुलाए उंगली खड़ी की थी। चल तू जा, छुट्टी के दिन दिमाग खाने आ जाता है हमारा। इसकी हरकतें पता हो ना तुझे तो फिर पता चले। उस्मत ने हाथ हवा में उठाए गुस्से से कहा। बिल्कुल दुरुस्त, फिर बला की औलाद है, फिरकी की तरह पूरे घर में उधम मचाता है, और बात तो जैसे कोई समझ ही नहीं आती इसे। कुछ भी कह दो बस घूरने लगता है। रूबी के अंदर मौजूद कड़वाहट अरूज पर थी। इतनी तो मार खाता है बेचारा, आप सबसे क्या दिमाग काम करेगा इसका? क्यों दिखावा कर रहे हैं दुनिया के लिए? इससे अच्छा किसी यतीम खाने में ही छोड़ आते इसको। यावर दिलखराश लहजे में चीख उठा। हाँ, तुझे बहुत खुदा तरसी है ना, तो तू क्यों नहीं ले जाता? रूबी ने नाक चढ़ाई। इसे गोद ले लूंगा भाभी, मैं ही ले लूंगा। अब मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जो इसे कबूल करेगी, यावर ने तनकर जवाब दिया। रूबी का रंग एकदम से फीका पड़ा। ये तो उसी के सर पर पड़ गई। अब यावर ने अगर उसकी बहन सोनी से शादी से इनकार कर दिया तो? यावर दुरान को सीने से लगाए कमरे में जा चुका था, जबकि वो दम्बखुद खड़ी रह गई थी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसकी अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।